it feels special, not just because we are together to celebrate, but because the theme reminds us of something deeper. Virtue, the path of wisdom. Virtue is not a grand word found only in books, it lives in small choices. Telling the truth when it is easier to hide, helping the friend without being asked, staying patient when things go wrong. These simple acts shape who we are, and wisdom, I believe, grows when we keep walking that path again and again. Our children show us this every day in their curiosity and their kindness. जब जीवन की राहें धुंधली पड़ जाती हैं, तब सद्गुण ही प्रकाश बनकर हमें मार्ग दिखाते हैं। सत्य हमारी शक्ति है, साहस हमारी पहचान और करुणा हमारे हृदय की सबसे सुंदर धड़कन। आज का यह मंच केवल रंगों और रोशनी का संगम नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों का उत्सव है जो हमें भीड़ से अलग बनाते हैं। हम जानते हैं कि कल, आज और आने वाला कल इस संसार की अटल सच्चाई है, और इसी भावना पर आधारित है हमारा आज का यह कार्यक्रम, जिसका शुभारंभ हम करने जा रहे हैं गणेश वंदना के साथ। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए हमारे गणेश वंदना के नन्हे कलाकारों का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यो रियाना, आर यू रेडी फॉर द राइड? नॉलेज के लिए हम हैं वर्ल्ड वाइड। किताबें, गैजेट्स, सब कुछ है नियर। क्यूरियोसिटी की चाबी से खोलेंगे सब गेयर। ये दुनिया है डिजिटल, सोचते हैं सब, क्वेश्चंस का लोड लेते हैं हम सब। साइंस हो या हिस्ट्री, सब कुछ है लिंक। दिमाग का इंजन हमेशा करे थिंक। जो पूछे सवाल वो जीतेगा गेम। एक्सप्लोरेशन ये है अपना फेमस गेम। Ma'am, are we actually walking to a place with zero bars? I mean, how are we supposed to share journey vibes without a network? Guys, welcome to Trek Talk Day 2. Still no signal, but we are climbing to enlightenment. Smash that like button even if you are in the Stone Age. So guys, please जल्दी से मुझे Insta पे follow करो for more teas. You kids and your tech. Maybe I should introduce you to someone from the old era. No Wi-Fi, no tech. Only pure honesty and truthfulness. Have you heard of Raja Harish Chandra? Wait, are we doing history lessons on a trek now? क्या ये सरप्राइज एलिमेंट था that you promised? Is Harish Chandra the guy who invented honesty, or like the first human lie detector? No, Chirag. Raja Harish Chandra was known for his unwavering truthfulness. Think about it. A man who refused to tell a lie even when life was rough. Wait, did he get any likes for this honesty or followers? I mean, what's the point if no one's watching? What was this Harish Chandra doing? Maybe he could have done a truth bomb challenge? Harish Chandra didn't care about followers or fame. His audience was his conscience. Today, we talk about being authentic online, but Harish Chandra lived it in real life. That's more impressive than any social media streak. Do you think Harish Chandra could have been an AI influencer? Well, I suppose if Harish Chandra were around today, he'd definitely be a beacon of truth. Surely he'll stand out more than an influencer.
Maybe the world needs a little Harish Chandra in its algorithms. We could totally pitch this as a startup idea. Harish Chandra, the AI-powered truth advisor, available on all platforms with no in-app purchases. Looks like you modernize history. Now, let's see if you can survive another hour without your gadgets before you collapse from digital withdrawal while we hear another story. हे महामुनि, क्या कोई ऐसा मनुष्य आपने देखा है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता हो? क्यों नहीं इंद्रदेव, मेरे शिष्य सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे शासक हैं जो किसी भी कीमत पर सत्य का मार्ग नहीं त्यागते हैं। हे महामुनि वशिष्ठ, आपने जो कहा वो कदापि संभव नहीं। किंतु महर्षि विश्वामित्र जी, मैंने असत्य नहीं कहा। मैं यह नहीं मान सकता। किसी भी मानव हेतु यह कार्य असंभव है। वशिष्ठ जी, मैं आपकी बात को असिद्ध करके दिखाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को मिथ्यावादी सिद्ध करने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने दान पुण्य का कार्य करना था, जिसमें भारी मात्रा में स्वर्ण दान किया जाना था। महर्षि विश्वामित्र को ज्ञात होते ही वे राजा हरिश्चंद्र से साधु के रूप में भेंट करने पहुंच जाते हैं। आपका स्वागत है साधुवर। आपके आने का क्या प्रयोजन है? हे राजन, मुझे तुम्हारे राजपाट सहित सारा राजकोष भी दान में चाहिए। मुनिवर, आपको दान देने में मुझे प्रसन्नता होगी। कृपया आप मेरे राज्य और राजकोष स्वीकार करें। राजन, अगर तुम यह कह दो कि तुमने मुझे राज्य और राजकोष देने का कोई वचन नहीं दिया है, तो मैं यह राज्य तुम्हें वापस सौंप दूं और तुम्हें ऋण से भी मुक्त कर दूंगा। महर्षि, मेरा अब यहाँ कुछ भी नहीं जिसे मैं अब अपना कहूँ। मैंने आपको वचन दिया था अपने राजपाट को सौंपने का। अब मैं अपने वचनों के प्रति बाध्य हूँ, इसलिए आज से यह राजपाट और राजकोष आपका हुआ। प्रजा एवं शुभ चिंतकों को विलाप करता हुआ छोड़कर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ राजधानी त्याग दी। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी एवं पुत्र को एक ब्राह्मण को बेच दिया और स्वयं को नगर के बधिक, जो कि शमशान का रखवाला होता है, उसको बेचकर उसके दास बन गए। अपनी पत्नी पर लगे चोरी के अभियोग के कारण सजा के तौर पर दिए गए मृत्युदंड और अपने पुत्र के शव को देखकर भी हरिश्चंद्र अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान थे। मृत्युदंड का यह कार्य हरिश्चंद्र को सौंपा गया। हरिश्चंद्र ने जैसे ही तारामती का सर धड़ से अलग करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तभी एक आवाज आई। ठहरो हरिश्चंद्र, कष्ट क्यों उठाते हो? तुम एक महान राजा हो। पुत्र जी उठेगा, पत्नी मुक्त हो जाएगी, किंतु तुम्हें मात्र एक वाक्य कहना होगा कि मैंने किसी का कोई ऋण नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने वचनों से कभी पलट नहीं सकता और सत्य का मार्ग छोड़ नहीं सकता। मुझे अपना यह कार्य करने दीजिए। ठहर जाओ हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होता है। मैं पराजित हुआ। राजा हरिश्चंद्र, तुम महान हो। तुम जीते और मैं हारा। मेरे द्वारा उत्पन्न की गई विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी तुमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इस जगत में जब जब ईमानदारी और सत्यता की बात की जाएगी तो तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। सदा खुश रहो।
our Instagram King Harishchandra, hashtag would be hashtag Truth King, right? Totally. But speaking of kings, sir, do you have another history gem for us? Maybe someone with whom we can relate better? Yes, I have someone. But not a king this time. Ever heard of Shravan Kumar? Shravan Kumar, who's that? Sounds like the guy who would help with homework on a group chat. Shravan Kumar. Oh, I know this one. He's the guy who carried his parents on his shoulders, right? Like the original fitness influencer? Close enough. Seriously, he carried them? Like बिना किसी ऐप के to track his steps or a fitness band to measure his calories burned? Like how did he even survive? Shravan Kumar would probably be amused by all of this, but in reality, it wasn't just about physical strength. He put his parents' happiness above his own. Unlike today's time, where everything can be done by a portal, आशीर्वाद से पिटाई तक, स्विगी जिनी से एक क्लिक में आशीर्वाद सेंड एंड थप्पड़ रिसीव्ड। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। Well, looks like you have all found your own way to connect with Shravan Kumar. मेरी तीर्थ यात्रा पर जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम नेत्रहीन हैं। तुम सही कह रही हो, हम नेत्रहीन हैं। इसके अतिरिक्त इतने बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए सक्षम नहीं हैं। माँ, पिताजी, मैंने सब सुन लिया है। मैं आप दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा। आप दोनों की इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन ये कैसे संभव है पुत्र? बूढ़े, कमज़ोर और नेत्रहीन होने के कारण हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है पुत्र, पैदल यात्रा करना हमारे लिए असंभव है। आप दोनों उसकी चिंता ना करें। आप दोनों की सेवा ही मेरा धर्म है और आपकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य। मैं निश्चित ही उसका कोई उपाय ढूंढ लूँगा। आप दोनों केवल यात्रा पर जाने की तैयारी करें। श्रवण कुमार अपने माता पिता को उन बड़े टोकरों में बिठाकर उस छड़ी को अपने कंधों पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। श्रवण कुमार उन्हें कई तीर्थों पर लेकर जाता है और अंत में पवित्र गंगा नदी के जल में स्नान कर वे अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं। कितने धन्य हैं ये माता पिता जिन्हें ऐसा पुत्र मिला है। पुत्र, यह तीर्थ यात्रा केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही पूरी हो पाई है। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। हमारे पुत्र ने हमारी इच्छा को अपना कर्तव्य मानकर पूरा किया है। हम तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर धन्य हो गए। माँ, पिताजी, आप दोनों की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। मेरा संसार तो आपके चरणों में है। मैं आपके चेहरे पर खुशी देखकर संतुष्ट महसूस करता हूँ। पुत्र, तुम्हें सदैव माता पिता की सेवा में और उनके प्रति समर्पण के लिए याद किया जाएगा। संसार में जब भी एक आज्ञाकारी पुत्र की मिसाल दी जाएगी, तुम्हारा नाम उन सब में सबसे प्रथम होगा। तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप था, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन
चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बूटी नजर, नींद जो मार दे उसके हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। Wait, AI, translate that fast. बेटा, इसके लिए AI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु ही तुम्हें भगवान का रास्ता दिखाता है जो सबसे ऊपर है। सर, मेरा वाईफाई सब्सक्रिप्शन तो गॉन। I can't imagine the rest of my trek. Well, how can anyone, right? But there was a guy who didn't need any subscription to master his skills, and that too without your Wi-Fi. How is that possible? Yes, it's possible. एकलव्य, जिसने गुरु को बिना देखे गुरु की मूर्ति के आगे प्रैक्टिस करके और उन्हें अपना अंगूठा दान करके एक महान धनुर्धारी बना। अंगूठा दे दिया? मतलब फुल ऑन बायोमेट्रिक सैक्रिफाइस? क्या डेडिकेशन है। हाँ, और हम लोग तो ऑनलाइन मीटिंग का लिंक ना मिलने पर अटेंडेंस भी नहीं लगाते। अब ऐसे समझो, आप सबका भी कोई ना कोई पैशन होगा। टू वॉट एक्सटेंट यू मे गो टू अटेन इट। पैशन? गेमिंग? मतलब लीडर बोर्ड पे टॉप पे रहना भी तो एक तरह की गुरु भक्ति है, राइट? और गुरु कौन है? YouTube tutorials, how to master the game in 10 easy steps, like, share and subscribe वाले गुरु। Seriously? Eklavya cut off his thumb? I need my thumb for texting at least. प्रणाम गुरुदेव, मैं एकलव्य, निषाद राजपुत्र, आपसे शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? मैं विवश हूँ पुत्र, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। क्यों गुरुदेव? मैं आपसे धनुर्विद्या सीखकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। पुत्र, ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हूँ। जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों को धनुष बाण चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर गुरु द्रोण की हर बात, हर सीख को सुनता और देखता था। गुरु द्रोण की सीख के अनुसार वह
एकांत में तीर चलाना सीखकर अल्पकाल में ही धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। कौरव, पांडव तथा स्वयं गुरु द्रोण यह धनुर्कौशल देखकर दंग रह गए। गुरुदेव, ये क्या? इस कुकुर के मुंह में इतनी कुशलता से तीर लगाए गए हैं कि उसे चोट भी नहीं पहुंची। ऐसा तो सिर्फ एक महान धनुर्धर ही कर सकता है। ये निश्चित रूप से असाधारण कौशल है। इस तरह का निशाना साधने के लिए अत्यधिक ध्यान, धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ऐसा कौन कर सकता है। पुत्र, ये विद्या तुमने कहाँ से सीखी? गुरुदेव, ये आपसे ही सीखा है। किंतु मैंने तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी। गुरुदेव, मैंने आपको अपने गुरु मान के आपकी प्रतिमा को अपने समक्ष रखकर ये धनुर्विद्या सीखी है। अविश्वसनीय कौशल के स्वामी हो तुम। पुत्र, ये तुम्हारे निष्ठा और लगन का परिणाम ही है कि तुमने बिना कुकुर को चोट पहुंचाए अपनी धनुर्विद्या से उसका मुख बंद कर दिया। उत्तम, अति उत्तम। आयुष्मान भव। DIY learner, कोई अनअकैडमी या बायजूस नहीं, just pure determination. Sir, tracker shows there is a shortcut. Let's try this route. इतनी स्टोरीज के बाद भी नहीं समझे क्या मैम? No shortcuts. Well, you need to know someone who was one of your kind. आपके ही जैसा, अरुणी। प्रिय शिष्यों, आप सभी बहुत दूर से इस आश्रम में आए हैं, किंतु इस आश्रम में आने का प्रयोजन केवल वेद और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना नहीं है, अपितु एक अच्छा मनुष्य बनना भी है। इसलिए आपको ज्ञान अर्जित करने के अतिरिक्त आश्रम के कार्य भी दिए जाएंगे। उन्हें पूरी निष्ठा और लगन से करना होगा। जी गुरुदेव, हम आश्रम के सभी नियमों का पालन करेंगे और आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। हाँ गुरुदेव, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं तुम सभी को आश्रम के कुछ कार्य सौंप रहा हूँ। जब वे कार्य समाप्त हो जाए तो तुम लोग अपनी कुटिया में विश्राम के लिए जा सकते हो। जो आज्ञा गुरुदेव। श्याम, तुम जंगल से लकड़ियां एकत्रित करोगे। वेद, तुम नदी से पानी भरकर लाओगे। आरुणी और रतन, तुम खेतों की फसलों का ध्यान रखोगे। और उपमन्यु, तुम बागीचे की सफाई करोगे। बाकी शिष्य आश्रम की सफाई करेंगे और उसके पश्चात भोजन तैयार करने में गुरु माँ की सहायता करेंगे। मैं किसी कार्यवश आश्रम से बाहर जा रहा हूँ। मुझे आते हुए सांझ हो जाएगी। जी गुरुदेव। चलो मित्रों, हम सभी अपने अपने कार्यों को करने के लिए चलते हैं। चलो रतन, हमें भी खेतों की निगरानी के लिए चलना चाहिए। अरे ये क्या अरुणी, आकाश में तो काले काले बादल छा गए। लगता है घनघोर वर्षा होने वाली है।
चलो आश्रम वापस चलें। नहीं रतन, हमें गुरुजी के आदेश का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए जब तक वर्षा आरंभ नहीं होती, हम तब तक फसलों को एक बार देख आते हैं। अरे आरुणि देखो, इतनी तेज वर्षा शुरू हो गई है। चलो आश्रम वापस चलते हैं। तुम चलो, मैं तुरंत एक बार खेतों को देखकर आता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आरुणि कहाँ है? गुरुजी, वह प्रातःकाल खेतों की निगरानी के लिए गया था, परंतु अभी तक वापस नहीं आया। तो तुम उसके साथ नहीं गए? वो गुरुजी, बहुत तेज वर्षा होने के कारण मैं आरुणि के साथ नहीं गया था और मैंने उसे भी खेतों में जाने के लिए मना किया था। सभी शिष्य इसी क्षण मेरे साथ खेत की ओर चलेंगे और आरुणि को ढूंढेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। आरुणि, 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 कहाँ हो तुम? गुरुदेव, आरुणि यहाँ है, इस टूटी मेड़ की जगह पर लेटा हुआ है। अरे आरुणि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठंड से तुम्हारा शरीर तो नीला पड़ गया है। तुम आश्रम क्यों नहीं लौटे? गुरुजी, मुझे आपके निर्देश का अनादर नहीं करना था। मैंने तो आपके आदेश अनुसार फसलों की रक्षा करनी थी। तेज वर्षा के चलते मेड़ टूट जाने के कारण वर्षा का सारा पानी फसलों की तरफ बढ़ने लगा था। पानी के बहाव को रोकने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा गुरुदेव। मेरी आज्ञा मानने के लिए तुमने स्वयं के प्राण संकट में डाल दिए। धन्य हो तुम आरुणि, और मैं भी ऐसा शिष्य पाकर धन्य हो गया जिसने अपने गुरु के आदर के समक्ष अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। आज से तुम एक आदर्श शिष्य के रूप में सदा याद किए जाओगे। ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले पंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे। तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी सर, कब ये ट्रैक खत्म होगा? रियली एग्जॉस्टेड, नो स्ट्रेंथ लेफ्ट। Physical strength and mental strength, both are forces for any activity. This requires patience and calmness. Seriously? Let's just sit in silence for a while. Recharge. बुद्धा स्टाइल मेडिटेशन वाइब्स चाहिए। अल्टीमेट ट्रैकर फॉर ट्रुथ। ये ट्रैक भी इनलाइटनमेंट जर्नी से कम नहीं है सर, सो बेटर कीप वॉकिंग। मेडिटेशन की लाइव स्ट्रीम अपलोड करने से हैशटैग सिद्धार्था नहीं बनते। यू डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू, यू नो आई विल टेल यू व्हाट टू डू। ओह प्लीज डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू, और एल्स यू विल हिट मी। हे गाइस, don't get onto your big boss vibes. Don't spread hate, embrace love and kindness like our very own Siddhartha. You need to reflect on no hate and more love and kindness. आज वन कितना सुंदर लग रहा है। खिले खिले फूलों की सुगंध भी कितनी मनभावन है। यह निश्चित ही बसंत ऋतु का जादू है। इतने में आकाश से एक घायल हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिर पड़ा। अरे, ये घायल पक्षी कहाँ से आ गिरा? ये तो हंस है। इसके कोमल शरीर पर तो बाण लगा हुआ है। यह किसने किया है? कितना घबराया हुआ है ये पक्षी। इसे पानी पिला देता हूँ और बाण निकालकर घाव को धो देता हूँ।
यह पक्षी मेरा है, इसे मुझे दे दो। क्या तुमने इसका शिकार किया है? सिद्धार्थ, शिकार करना हम राजकुमारों का एक शौक है, पर तुम क्या जानो ये शौक। तुम बस वन में ही खेलो और अपने शौक पूरे करो। हंस पर बाण अवश्य ही तुमने चलाया है, परंतु इसे मैंने बचाया है। लेकिन इसका शिकार मैंने किया है, इसलिए ये मेरा है। इस प्रकार से आपस में झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। इससे तो अच्छा है कि हम महाराजा शुद्धोधन के दरबार में चलते हैं। महाराजा बड़े न्यायप्रिय हैं, अब वही फैसला करेंगे। ठीक है। दोनों न्याय के लिए राजा के दरबार में पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। आओ बच्चों, आज एक साथ यहाँ कैसे? महाराज, इस पक्षी की तरफ से मैं न्याय की मांग करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि इस पक्षी के प्राणों की रक्षा की जाए। इस पक्षी का शिकार देवदत्त ने कर इसे घायल किया है, लेकिन इसे मैंने बचाया है। महाराज, इस पक्षी का शिकार मैंने किया है, इसलिए ये मेरा पक्षी है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जंगल के जानवर उसी के होते हैं जो उन्हें पकड़ता है और मारता है। न्याय से ये पक्षी मेरा है। महाराज, जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आकाश में उड़ने वाले भोले भाले पक्षी कुछ कह नहीं सकते। उनकी जान बचाना क्या अन्याय है? देवदत्त, तुम्हारा कहना भी ठीक है। न्याय के अनुसार मरणोपरांत उस पर अवश्य ही तुम्हारा अधिकार होता, परंतु पक्षी अभी मरा नहीं है। महाराज, आप चिंतित ना हो। मुझे पूर्ण विश्वास है, जानवर हो या पक्षी, वह बेजुबान होते हुए भी प्यार की भाषा अवश्य ही समझते हैं। महाराज, हंस किसका है, इसका निर्णय स्वयं हंस को ही करने दीजिए। हंस को बीच में छोड़ दीजिए। वह जिसके पास चला जाएगा उसी को हंस सौंप दिया जाएगा। मंत्री जी, यह आपने ठीक कहा। हंस जिसके पास चला जाएगा उसी को वह दे दिया जाएगा। क्यों देवदत्त, सिद्धार्थ, तुम दोनों इस निर्णय से सहमत हो? जी महाराज, हम इस निर्णय से सहमत हैं। देवदत्त, सिद्धार्थ, तुम दोनों कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ। मैं हंस को बीच में छोड़ देता हूँ। हंस जिसके पास भी चला जाएगा वह उसी का होगा। लीजिए महाराज, निर्णय हो गया। हंस सिद्धार्थ के पास चला गया, इसलिए वह सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए। जी हाँ मंत्री जी, यह हंस सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस को जीवन दिया है। एक मूक प्राणी भी प्रेम महसूस करने में सक्षम होता है। जीवन लेने वाले की तुलना में जीवन देने वाला महान होता है। यह बात आज सिद्ध हो गई है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों के हम अमीर हैं। I'm done। ये लास्ट टेस्ट चढ़ाई तो टॉर्चर है। कोई टाइम मशीन होती तो सीधा ऊपर जाता। We need a reform. कोई ट्रैकिंग रूल्स चेंज कराओ, like no steep climbs after 3 PM. And another reform to have mandatory escalators for mountain treks, new age solutions for old school issues. Speaking of reforms, you all sound like the modern day Raja Ram Mohan Roy, always thinking of ways to challenge the norms and change the system. He was the social reformer guy, right sir? Well, yes. And he questioned the system in that era. If Raja Ram Mohan Roy had lived today, he would have fought for freedom from homework, free the students from all assignments,
Well, if Raja Ram Mohan Roy can change society, maybe we can change this trek next time too. Elevators? Anyone? Sir, we would like to know how he did it all. बेटा, तुम्हारे भाई ने तुमको अपनी आखिरी सांस तक याद किया। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे व्यवहार से ऐसा लग रहा है जैसे हमसे ही कुछ गलती हुई। बिल्कुल हुई है गलती। एक औरत होने के बावजूद भी आप किसी और औरत को मारने के लिए दूसरों के साथ एकजुट हो गई। मारना? ये तुम क्या कह रहे हो? राम 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 राम। तुम्हारी भाभी एक देवी थी, देवी। मैं तुम्हारे भाई के साथ सती हो गई। तुम्हारी भाभी ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने धर्म का पालन किया है। धर्म? क्या आप जानती हैं कि धर्म क्या है? मैंने शास्त्रों और पवित्र पुस्तकों को पढ़ा है और इन कुप्रथाओं और निराधार बातों की कहीं भी उनमें चर्चा तक नहीं है। लेकिन अब जब तक मैं इन धर्म के नाम पर अन्यायपूर्ण रीति रिवाजों और परंपराओं को रोक नहीं देता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। कलकत्ता के रूढ़िवादी हिंदू समाज के एक नेता राधाकांत देव बहादुर ने अपने रूढ़िवादी हिंदू मित्रों के साथ हिंदू समुदाय की ओर से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को याचिका पेश करके सती प्रथा के उन्मूलन के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की भावनाओं और उनकी पत्रिका में छपे मुक्त विचारों को पढ़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मो सभा के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय और कलकत्ता के रूढ़िवादी हिंदू समाज के नेता राधाकांत देव बहादुर के साथ दायर याचिका के बारे में चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। सुप्रभात। नमस्ते। Good morning, gentlemen. I have a petition from a few Hindus requesting for the abolition of sati practice. I don't know Hindu religion, but being a true Christian, I don't agree taking life of someone. And so, I think that those Hindus are putting forth a valid point. मुझे आशा है कि आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया होगा कि सती प्रथा को रोकने के खिलाफ आप कोई कानून नहीं बनाएंगे। हिंदू धर्म के खिलाफ बस कुछ ही लोग बोलते हैं। उन्हें हमारे धर्म, संस्कृति और परंपरा के बारे में ज्ञान नहीं है। हम हिंदू ये मानते हैं कि एक महिला के लिए अपने पति के साथ सती होना शुभ है। उन्हें हमारे हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें बहुमत के रूप में बोलने का भी अधिकार नहीं है। हम यहाँ इस बात पर तर्क वितर्क करने नहीं आए हैं। हम यहाँ मानव जाति के उत्थान के बारे में वार्तालाप करने आए हैं। एक पत्नी को उसके पति की चिता के साथ सती कर देना अन्याय है। हिंदू धर्म इस अन्याय के लिए अनुमति नहीं देता। हिंदू धर्म ही क्या, पूरे हिंदुस्तान का कोई धर्म ऐसा नहीं कहता। सती प्रथा वास्तविक रूप से एक हत्या है। इसे रोका जाना चाहिए। You all must think wisely and must do whatever is right. My only suggestion is live for truth and die for truth. मैं आखिर तक हिंदू धर्म की संस्कृति, परंपराओं और अधिकार के लिए लड़ूंगा। नमस्कार। Raja Ram Mohan Roy, you are totally different from other Brahmins. I have read your journal, Samvad Kunmali, and it had a great impact on you. Seriously, this evil practice of sati must be stopped. धन्यवाद सर, यह केवल एक अच्छे दिल वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। I assure you that future generations will remember this success. Now, I announce practice of sati or the immolation of a Hindu widow on the funeral pyre of her deceased husband illegal in all jurisdictions of British India and subject to prosecution. लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पिछाने है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी
This trek looks like another battle. अब कोई स्टोरी नहीं, बस समिट दिख जाए। You all seem tired, but do you know who wasn't afraid of a challenge, no matter how hard the journey? My legs can't handle this trek, so why not another story break? पेशेंस तो ऑनलाइन शॉपिंग में दिखता है, क्योंकि 50 टैब्स खोल के कंपैरिजन जो करना होता है। तुम्हें भी गांधी जी के 3 बंदरों की तरह होना चाहिए। See no track, hear no track, speak no track. Chirag, if you think this trek is tough, you'd never survive Gandhiji's Dandi March. No shortcut, no complaining. Just 240 miles of walking. 240 miles without a Uber? मैम, गांधी जी हैड ओनली अ वॉकिंग स्टिक एंड डिटर्मिनेशन। अगर हम होते तो पहले हाइकिंग शूज, फिर एनर्जी बार्स और फिर पोर्टेबल चार्जर्स लेके चलते। Yes, true. But Gandhiji didn't need any energy bars. His energy came from his belief in a cause greater than himself, his commitment to non-violence and truth. हम अपनी यात्रा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तट तक लेकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। इस यात्रा के दौरान ये संभव है कि अंग्रेज सैनिक हमें रोकने के लिए हम पर लाठीचार्ज करें। तो हम भी कमजोर नहीं हैं, हम उनकी हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। बिल्कुल नहीं, सत्य, अहिंसा, प्यार और दृढ़ता में बहुत शक्ति है। यह मूक बल के पर्याय के रूप में काम करता है। मेरे प्रिय साथियों, विश्वास रखो कि एक दिन यह नीति हमें अवश्य विजय दिलाएगी। मेरे प्रिय साथियों, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर विश्वास करो। हम पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के हथियार से दिखाना चाहते हैं कि हम हर अन्याय और शोषण से लड़ सकते हैं। हम सभी अपनी रणनीतियों से अवगत हैं, हम मूक दर्शक नहीं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तलवार की तुलना में कलम अधिक शक्तिशाली होती है, इसी तरह हिंसा का परिणाम कुछ भी नहीं होगा। आज हमारी यात्रा की रिपोर्ट करने वाला केवल एक समाचार पत्र है, लेकिन कुछ दिनों में सभी अमेरिका, भारत और ब्रिटेन के पत्रकार हमारी यात्रा के बारे में रिपोर्ट करेंगे। निश्चित रूप से वह एक धमाका होगा। हम केवल अहिंसा का पालन करेंगे और सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। नेहरू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए आप सभी बापू जी की कही हुई बातों का ध्यान रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में आपको कोई हिंसा नहीं करनी है। आप पर लाठी चार्ज किया जा सकता है, लेकिन आप विरोध नहीं करेंगे। आप किसी भी प्रकार के प्रहार का विरोध करने के लिए अपने हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है सरोजनी बहन, हम बापूजी के सिखाए अहिंसा के रास्तों पर ही अपनी यात्रा करेंगे और अंग्रेजों को बता देंगे कि अहिंसा में कितनी शक्ति है। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Stop your march, go back, लाठी चार्ज। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 6 अप्रैल 1930 का वह दिन जब गांधी जी और उनके 78 सत्याग्रहियों ने 390 किलोमीटर की दांडी यात्रा अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूर्ण की और समुद्र तट पर पहुंच गए। मैं अपने सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज्य प्राप्ति के लिए पहला कदम उठाया। आज इस मुट्ठी भर नमक के साथ मैं नमक के अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ता हूँ, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। इसके साथ ही मैं ब्रिटिश साम्राज्य का आधार हिला रहा हूँ, क्योंकि मैं नमक का उत्पादन कर रहा हूँ। और मैं अपने सभी अनुयायियों से यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमने अहिंसा के बल पर एक पवित्र युद्ध जीता है। हम जीवन और मृत्यु के संघर्ष में सफल हुए। हम सभी विजेता हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। माटी पुकारे तुझे देश पुकारे।
सबकी स्टोरी सुन के तो लग रहा है कि हमको भी कुछ बड़ा अचीव करना चाहिए, बट लेट्स बी रियल, मुझे तो सुबह का अलार्म सुन के उठना भी एक बड़ा अचीवमेंट लगता है। हाँ, और अपने आप अलार्म के बिना उठना भी तो एक हीरोइक काम है। एक ही बार किया होगा मैंने लाइफ में। अब ये हीरोइक एक्ट्स काफ़ी नहीं होंगे। अगला कौन सा लेजेंड है मैम? क्या किसी ने सुबह उठने की सुपर पावर डिस्कवर नहीं करी? Actually, I will tell you about someone who woke up every day and went to work dealing with all sorts of challenges. She was a superhero in every sense. Neerja Bhanot, who saved people from hijackers. Neerja Bhanot was a real warrior. I don't think I could have done what she did. मैं तो हाईजैकर्स को ये बोलता, भाई मुझे जाने दो, मैं IIT के लिए पढ़ रहा हूँ, जाने दो प्लीज़। हाँ, और मैं ये बोलता, भाई जो करना है करो, मेरा फ़ोन भी ले लो, बस डेटा सेव रखना। It is easy to laugh now, but in a real situation, it takes immense bravery to act like her. Remember, sometimes real heroes don't wear capes. They wear uniforms and do their jobs with their heart. We agree, sir. Neerja Bhanot definitely beats all our so-called heroic moments. वह दिन था 5 सितंबर 1986 का, जब वे पैन AM की फ्लाइट में सीनियर पर्सर के तौर पर नियुक्त थी। इस फ्लाइट में लगभग 380 यात्री थे। यह फ्लाइट मुंबई से अमेरिका जा रही थी। नमस्कार, आप सबका स्वागत। वेलकम सर, वेलकम मैम। Hi Neerja, 3 unaccompanied minors, 2 boys and 1 girl are traveling to Frankfurt. Don't you worry, I'm going to take good care of them. Hi guys, I'm Neerja. Come, please have your seats. Be comfortable. All passengers aboard. Captain. Ladies and gentlemen, welcome to Pan Am 73, flying to New York via Karachi and Frankfurt. The time is 4 AM IST. We hope to land in Karachi in 1 hour 20 minutes. Crew to arm all doors and cross-check. The flight will take off shortly. Pan Am Flight 73 has landed at Karachi International Airport. Passengers can unfasten their seat belts. नीरजा अपने सहकर्मियों के साथ फ्लाइट में अपनी ड्यूटी निभा रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। 4 आतंकवादी अमेरिकन को सबक सिखाने के इरादे से फ्लाइट में प्रवेश कर गए। नीरजा इस खतरे को भांप गई और उसने पायलट को प्लेन हाईजैक की सूचना दी। नीरजा की सूचना पर पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट छोड़कर भाग गए। हाईजैक, आई रिपीट, हाईजैक। चुप हो जाओ तुम, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। चलो सब अपनी अपनी जगह ले लो, सबको घेर लो, तुम सब अपने अपने हाथ ऊपर कर लो, कोई चालाकी नहीं, वरना गोलियों से भून लिए जाओगे। This will not help you to solve anything. चुप रहो तुम। अगर 1 घंटे के अंदर पायलट्स वापस ना आए तो हम एक एक करके पैसेंजर्स की लाश इन्हें तोहफे में देंगे। संजना, ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि अब तक प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका होगा। अंदर अंधेरा भी होने लगा है और बाहर भी शाम हो गई है। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। मैं जल्दी से प्लेन के सारे इमरजेंसी एग्जिट्स खोल दूंगी। तुम सभी पैसेंजर्स को वहां से बाहर धकेलते जाना। तैयार हो तुम? हाँ ठीक है, मैं तैयार। निकलो, भागो सभी। संजना, सबको जल्दी बाहर निकालो और तुम भी निकलो। तुम लोग निकलो जल्दी, मैं बाकी पैसेंजर्स को बाहर निकाल कर आऊंगी। बेवकूफ मत बनो नीरजा, इस समय अपनी जान बचाओ, दूसरों की फिक्र मत कर। संजना, तुम जाओ, मुझे अभी कुछ और पैसेंजर्स और उन छोटे बच्चों को भी निकालना है। दीदी हमें बचाओ, हमें डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। हट जाओ आगे से, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। भागो बच्चों।
बच्चों। ठहरो, कहाँ लेकर भाग रही हो इन्हें? हमसे चालाकी। अब पहले तुम्हें ही गोलियों से भूल डालती हैं। फाइनली लगता है सबमिट पास आ रहा है। यस, अब तो लगता है हमने कोई वॉर जीत ली हो, जैसे कारगिल कॉन्कर कर दिया हो। कारगिल से याद आया, ये दिल मांगे मोर, रिमेंबर दैट डायलॉग? ये दिल मांगे मोर, प्योर बॉलीवुड स्टाइल। Speaking of Kargil, do you know the real hero behind that line? Captain Vikram Batra. Oh yeah, the Kargil war hero, right? उनका डायलॉग तो वायरल हो गया था। Yeah, but he was a real life Sher Shah, not our Insta famous types. कैप्टन विक्रम बत्रा इंस्टा पे होते तो आज के ज़माने में हाउ टू कैप्चर अ पीक इन 5 इजी स्टेप्स ट्रेंडिंग होता। On a serious note, सोशल मीडिया पे वायरल होना इजी है, बट वॉट ही डिड फॉर द कंट्री फेसिंग रियल डेंजर, वो रियल करेज था। हाँ, हम लोग इंस्टाग्राम की लाइक के लिए जान दे रहे होते हैं और उन्होंने लिटरली देश के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। There is more to Captain Batra than what you see in the movies. चलो, लेट्स मेक कैप्टन बत्रा प्राउड। ट्रैक कॉन्कर करके ही रहेंगे। हैशटैग दिल मांगे मोर। Congratulations ऑफिसर, तुम्हारी टीम दुश्मन की सेना पर काफी भारी रही। तुम्हारी इस शानदार जीत को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें कैप्टन बनाया जाता है। थैंक यू सर। और सर, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज में कैप्टन विक्रम बत्रा की दहशत इतनी है कि उन्होंने अपने कोड मैसेजेस में इन्हें शेर शाह का नाम दिया है। हा हा हा, वंडरफुल। होनी चाहिए इतनी दहशत। आखिर ये भारत के वीर जवान हैं हमारे। आई एम प्राउड ऑफ यू कैप्टन विक्रम बत्रा। थैंक यू सर। 1 जून 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया। लड़ाई में आगे बढ़ते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर 16,962 की ऊंचाई पर पॉइंट 5140 की चोटी पर कब्जा करने में कामयाब रहे। जीत का कारवां यही नहीं रुका। रात के अंधेरे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 4875 की चोटी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने दुश्मन को ललकारा। उनके साथ लेफ्टिनेंट अनुज नायर और लेफ्टिनेंट नवीन भी थे। सर, इस चोटी की गहराई 80 फीट है। इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग टास्क फॉर अस। यस सर, लेफ्टिनेंट अनुज इज राइट। और इससे भी ज्यादा टफ बात तो ये है कि इन बर्फीली पहाड़ियों की धुंध का फायदा दुश्मन को होगा, क्योंकि वे हमें चोटी की ऊंचाई से नजर नहीं आ पाएंगे। You're right, लेफ्टिनेंट नवीन। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें दुश्मनों को अपनी सरजमी से उखाड़ना ही होगा। जब तक हम जिंदा है, देश पर आंच नहीं आने देंगे। शेर शाह ने हम पर
विक्रम बत्रा यहाँ तक कैसे पहुँच गया? खैर कोई नहीं, आज तो उसको पाकिस्तानी फौज की ताकत बता कर ही रहेंगे। इससे पहले कि वो और उसकी टुकड़ी यहाँ तक बढ़ाए, उस पर ऑटोमेटिक फायर और ग्रेनेड से हमला कर दो, क्योंकि अगर शेरशाह अपने साथियों के साथ यहाँ तक आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। जाओ जल्दी। यस सर, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। उनका एक जवान हमने घायल भी कर दिया है। लेफ्टिनेंट अनुज, लेफ्टिनेंट गवीन की दोनों टांगें जख्मी हो गई हैं। हमें उन्हें वहां से निकालना होगा। ठीक है सर, मैं उन्हें निकालता हूँ वहां से। आप मुझे कवर फायर दो। नहीं लेफ्टिनेंट अनुज, तुम नहीं, मैं निकाल कर लाता हूँ उसे। तुम मुझे कवर फायर दो। नहीं सर, मैं आपका जूनियर हूँ, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। अनुज, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे और वाइफ तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। मेरा क्या है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, इसीलिए मैं जाकर उसे वहां से निकाल कर लाता हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, सो यू जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। यस सर। सर, यू आर वेरी ब्रेव। दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था, फिर भी आप मुझे बचा लाए। अब आप मेरी चिंता न करें और दुश्मनों से अपनी सरजमी को बचाकर जल्दी वापस आइए। तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने अपने देश की सेवा की कसम खाई है। अब या तो अपने तिरंगे को हाथ में लेकर फहराता हुआ वापस आऊंगा, या उसमें लिपट कर, पर आऊंगा जरूर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के,
गम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सर्वप्रथम नमन, वंदन, अभिनंदन उन बच्चों का जिनकी बदौलत आज इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और हम सब यहाँ बैठे। हमारी सांसों को गीत और आत्मा को सांस देते हैं ये बच्चे ही हैं जो हमें जीने का अंदाज देते हैं। वो जिधर देखते हैं सब उधर देखते हैं और हम तो देखने वाले की नजर देखते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होते हुए वकालत की दुनिया का एक व्यक्ति होते हुए पिता के द्वारा खींची गई एक रेखा की बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। नहीं तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होता, नहीं तो उच्चतम न्यायालय में इस समय होता। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं वकालत करूँ, लेकिन मैं वापस लौटा और हिंदी की बदौलत इस देश में जाना जाता है। ये बड़ी बात कह रहा हूँ। माँ शारदा को चरणों में नमन करते हुए, अहंकार से दूरी बनाते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए बड़े दावे से कहता हूँ कि हिंदी की बदौलत इस देश में मैं जाना चाहता हूँ। Now, I would request Dr. Ajay Arora, sir, Chairman of Holy Group of Schools, to please come on the stage and share his experience with our audience. मैं समझता हूँ कि जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज हमने यहाँ पर देखी है, उसके ऊपर जो डेडिकेशन है, इन बच्चों का हार्ड वर्क है, टीचर्स की गाइडेंस है, और सबसे बड़ी बात जो अन्नू मैम और अंशुल सर ने जो यहाँ पर एक इस एरिया के अंदर जो स्कूल स्प्रिंग मेडोज पब्लिक स्कूल का जो नाम किया है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करी है श्रीमती लेट सुखवर्षा दीवान जी को, जो को फाउंडर थी इस स्कूल की, और जिन्होंने अपने ना केवल समय से बल्कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने उनको जीवन में हमेशा इस स्कूल के लिए अपनी कह सकता हूँ कि जान को निछावर करते हुए देखा। और आज मैं देख रहा हूँ उन बच्चों के अंदर वो डेडिकेशन जो उन्होंने उस समय सोचा था, और वही सोच और वही एम को लेकर आज अंशुल सर और अन्नू मैम इस काम को, उनके सपने को साकार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति हमारे बीच में से अगर चला भी जाता है, लेकिन हम अगर उसके सपने को साकार करते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमें अपना ब्लेसिंग देते हैं। आज मैंने इस कार्यक्रम के अंदर देखा कि कहाँ श्रवण कुमार, कहाँ हरिश्चंद्र और कहाँ पर जो है सिद्धार्थ, राजा राम मोहन राय, और ये सारी और हमारी बेटी जो नीरजा थी, तमाम तरह का एक जो आने के बाद जब मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक सेकंड भी मेरा माइंड, मेरा ध्यान इस कार्यक्रम से अलग नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा एक एग्जाम्पल स्कूल क्या सिखाता है, स्कूल के संस्कार कैसे हैं, उन टीचर्स की सोच कैसी है, उन गुरुओं की सोच कैसी है, इस स्टेज के ऊपर आपने 2 घंटे के अंदर पूरे प्रोग्राम के अंदर समझा होगा, मुझे लगता है।